students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4, that is queries and reports in MS Access. So let's begin with this lesson. Here, first we are going to study about the queries and what are the forms in MS Access. Then we are going to talk about how to create relationship between tables, then reports, and then how to create a query. So let's start. In previous chapter, we learned that Access is DBMS software. So हमने previous chapter में क्या पढ़ा कि Access क्या है? एक DBMS software है. Tables, forms, queries and reports are the important objects that can be created in an Access database. So ये क्या है? एक important objects है जो हमें database में create कर सकते हैं Access database में. In real life scenarios, hundreds of records are stored in the database tables. तो रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या होता है कि जो हंड्रेड्स ऑफ डेटा होता है आपका स्टोर किसमें होता है, हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर्ड होता है आपके डेटाबेस टेबल्स में स्टोर्ड होते हैं. Access objects such as queries, forms and reports provide a convenient and easy way to enter. ये एक convenient और easy way प्रोवाइड करता है एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को stored in database tables. Queries, let us quickly extract data from one or more tables based on the given conditions. So let's extract data from one or these. Let's quickly extract data from one or more tables based on the given conditions. Forms and reports, let us enter or display data. तो यहाँ चलो हम क्या एंटर करते हैं, डेटा डिस्प्ले एंटर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डेटा को इन यूजर फ्रेंडली मैनर में. So let us learn more about these objects. So first one is query. What is query? नेम से ही पता चल रहा है. A query is used to retrieve selective data based on specific criteria from one or more tables. ये क्या होता है, किस लिए यूज होती है क्वेरी? रिट्रीव करने के लिए सेलेक्टिव डेटा जो हमारे किस पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, एक में या उससे ज्यादा टेबल्स में. फॉर एग्जाम्पल, यू मे डिजाइन अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 90% ऑफ अ क्वेरी टू फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स who made a purchase in the past 1 month. So एक आपको क्या करना है, डिजाइन करने क्वेरी जो डिस्प्ले करे नेम्स सब स्टूडेंट्स ही जिन्होंने सिक्योर किया मोर देन 90%. और ये क्या फिर क्वेरी है, फाइंड आउट करनी आपको डिटेल्स कस्टमर की जिन्होंने सबसे ज्यादा 5 मंथ्स में एक वन में परचेज की है. सो लेट अस लर्न टू क्रिएट सिंपल क्वेरीज इन एक्सेस. कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरीज? क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. So as you know, the MS Access is a relational database. जैसे कि आपको पता है MS Access क्या है कि relational database है. It means that you can create relationship between tables. का क्या मतलब कि आप database के अंदर create कर सकते हो relationship tables के बीच में. You can do this directly in the relationship window. आप directly से किस में कर सकते हो कि relationship window में कर सकते हो. The data in the table should be correlated to make the relationships possible. जो data है आपके tables में वो कोरिलेट करना चाहिए रिलेशनशिप्स को पॉसिबल बनाने के लिए. इट ऑल्सो डिसमिसेस रेड्यूडेंसी. ये क्या डिसमिस करता है? रेड्यूडेंसी डिसमिस करता है, मेंटेन करता है हाई डेटा रिलायबिलिटी इन द डेटाबेस. इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, अगर आपको दो टेबल्स के बीच में एस्टेब्लिश करनी है रिलेशनशिप्स, देयर मस्ट बी अ कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल्स. तो दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड होनी चाहिए. दैट इज For example, the personal detail table may have an employee ID. Personal detail table में क्या होनी चाहिए? एक employee की ID होनी चाहिए हर ID field में, and employee details होनी चाहिए. Should have an employee ID field. So therefore, these two tables could be joined. तो ये आप इन दोनों tables को join कर सकते हो और relate कर सकते हो employee ID field से. The field type must be same in both tables. जो field type होता है वो फील्ड टाइप होता है वो जो दोनों टेबल्स में सेम होना चाहिए फॉर अ रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट. इन मोस्ट रिलेशनशिप द प्राइमरी की फील्ड्स इज वन टेबल. जो बहुत सारे रिलेशनशिप में क्या होता है, जो प्राइमरी की होता है वो एक टेबल होती है जो रिलेट करती है टू द सेम फील्ड इन द अदर टेबल विच में नॉट बी इट्स प्राइमरी की. जो क्या पता है उसकी प्राइमरी की भी नहीं हो सकती. The relationship field in the other table which is called foreign key act as a cross reference. जो relationships होती है टेबल में जो foreign key होती है जो कैसे act करती है वो cross reference से act करती है between the two tables. You can create and manage relationship between tables. आप create कर सकते हो, manage कर सकते हो relationship tables के बीच में एक special database में view called relationships. उस view को क्या कहता है? We call that view as the relationships.
To create relationships between tables, follow the given step. First आपको क्या करना है, क्लिक करना है डेटाबेस टूल टैब पे. Then you have to click on relationships option. फिर आपको relationships option पे क्लिक करना है रिबन एरिया में. The relationship window appear हो जाएगी. If any relationship already exists between the tables in your database, a box for each appears in the window. हर box अगर already exist करती है तो हर उसके लिए box appear हो जाएगा आपकी window में. The show table dialog box appear listing all the tables in your database. जो show table dialog box है वो appear हो जाएगा. list कर दो सारी tables आपकी database में. Click on a table you want to add to the relationships window. आपको click करना है उस table पे जो आपको add करनी है अपने relationships window में. Click on the add button. आपको click करना है add button पे to add the tables to the window. add करने के लिए tables अपनी window में. Repeat करना है आपको step 3 और 4 for each table that you want to add. When you finish adding tables, जब आप finish कर देते हो tables add करना, relationship window click on close button. जो relationship window है वो क्या करते हैं, click करते हैं close button पे. To remove the show table dialog box. The relationship between the relationships window displays a box for each table. जो relationship window है वो क्या करती है, display करती है box हर table के लिए. The primary key for each table appears highlighted. जो primary key होती है हर table के लिए highlighted appear होती है. The primary key uniquely identified each record in our table. जो primary key है uniquely वो क्या identify करती है, record identify करती है हर table में. Now you can create a relationship between tables. Identify the matching fields in the table. अब आप क्या कर सकते हो, create कर सकते हो relationships table के बीच में identify करते हो matching fields table में. Place your mouse pointer. आपको क्या करना है, अपना mouse pointer place करना है field में you want to use to create relationships. जो आप relationships create करने के लिए use करना चाहते हो with another table. Now क्या करना है, आपको drag करना है field with mouse over the other table until a small box appear over the matching field. जब तक एक small box appear नहीं होता एक matching field में. The edit relationships dialog box will appear. जो edit relationship का dialog box वो appear हो जाएगा. Table query and related table query area display the names. जो table query है फिर related table query है वो डिस्प्ले करती है नेम्स आपके टेबल्स की एंड नेम्स ऑफ आपके मैचिंग फील्ड्स की. एंड आपको क्या करना है, क्लिक करना है क्रिएट बटन पे टू क्रिएट अ रिलेशनशिप्स. आफ्टर दैट you are a line connecting the field in a row tables. जो एक लाइन होगी कनेक्ट करती है रो टेबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देगी. दिस लाइन वो शो करेगी कि आपके रिलेशनशिप्स क्रिएट हो गई है. सो if you no longer want relationship between tables, अगर आपको relationships नहीं चाहिए अपनी tables के बीच में आप delete कर सकते हो उसको. You can delete it. आपको उसके लिए क्या करना है, क्लिक करना है लाइन पे for the relationships you want to delete. Then प्रेस करना है डिलीट की को. स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपको डिलीट की को प्रेस करना है कीबोर्ड से एंड देन एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कंफर्म करने के लिए डिलीशन. आपको किस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है परमानेंटली डिलीट करने के लिए रिलेशनशिप को. क्रिएटिंग अ क्वेरी. डिजाइन व्यू कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सिलेक्टेड क्वेरी मैनुअली. डिजाइन व्यू किस लिए यूज होता है, क्रिएट करने के लिए सिलेक्टेड क्वेरी मैनुअली. व्हेन यू यूज डिजाइन व्यू, जब आप डिजाइन व्यू को यूज करते हैं यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द डिटेल्स ऑफ द क्वेरी ऑफ डिजाइन. आप पे ज्यादा कंट्रोल होता है आपके किससे, क्वेरी डिजाइन पे. अब क्वेरी इन डीबीएमएस इज अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. जो क्वेरी आपके डीबीएस में होती है वो क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन की डेटाबेस से. The result could include generated data like graphs, tables, or other pictorial forms. To design creating a query, follow the given step. आपको click करना है create tab पे, then click करना है query design option पे to open the show table dialog box. Click करना है आपको table पे to use in the query. Then आपको click करना है add button पे add करने के लिए table to your query. Repeat करना है आपको step 3 और 4 for each table you want to use in your query. जो टेबल आपको यूज करनी है क्वेरी में. एंड क्लिक करना है क्लोज बटन पे हाइड करने के लिए शो टेबल डायलॉग बॉक्स को. या जो शो टेबल डायलॉग बॉक्स है वो आपका हाइड हो जाएगा. इफ यू ऐड अ टेबल एक्सीडेंटली, अगर आपने गलती से कोई टेबल ऐड कर लिया है क्वेरी में आपको डिलीट करना है तो आप क्या करना है, आपको क्लिक करना है टेबल पे एंड देन प्रेस कर देना है आपको डिलीट की को. डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन. डबल क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन पे ऑन द फील्ड तो इंक्लूड इन द क्वेरी. जो फील्ड आपको अपनी क्वेरी में इंक्लूड करनी है उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है. रिपीट करना आपको स्टेप 8 फॉर ईच फील्ड टू इंक्लूड इन द क्वेरी. व्हेन अ फील्ड नेम प्रेजेंट इन क्वेरी इज डबल क्लिक. जब एक फील्ड नेम जो प्रेजेंट होता है क्वेरी वो डबल क्लिक हो जाता है देन वो क्या होता है, ऐड हो जाता है कि डिजाइन ग्रिड प्रेजेंट होता है बॉटम ऑफ द एक्सेस विंडो. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजाइन ग्रिड. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, फील्ड. फील्ड शो द सिलेक्टेड फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल. ये क्या शो करते हैं, सिलेक्टेड फील्ड नेम शो करती है आपकी टेबल से. टेबल क्या करती है, शो करती है नेम ऑफ द टेबल ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड नेम.
सॉर्ट क्या करता है, फिल्टर करता है डेटा इन अ टेबल इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। शो क्या करता है, इट हैज अ चेक बॉक्स, उसमें चेक बॉक्स होता है विच व्हेन क्लिक शोज अ टिक मार्क। जब उस पर क्लिक करते हैं तो क्या शो करता है, टिक मार्क शो करता है ऑन अ क्वेरी बीइंग वन। क्राइटेरिया शोज द बेसिस ऑन विच रिकॉर्ड्स आर फिल्टर्ड इन अ क्वेरी। क्राइटेरिया शो करता है बेसिस जिस पर रिकॉर्ड में फिल्टर होती है वो क्वेरी में। और इनेबल करता है मल्टीपल क्राइटेरिया इन क्वेरी, मतलब जो मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं आपकी क्वेरी में उन्हें इनेबल करता है। नाउ सेटिंग क्राइटेरिया फॉर अ क्वेरी, जो क्राइटेरिया सेट करते हैं हम क्वेरी के लिए इन अ टेबल, यू शुड स्पेसिफाई अ क्राइटेरिया टू रन अ क्वेरी। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप। तो इन डिजाइन रिक स्पेसिफाई करना आपको फील्ड नेम यू वांट टू अपीयर इन योर टेबल आफ्टर रनिंग द क्वेरी। गो टू क्राइटेरिया इन डिजाइन ग्रिड, आपको क्राइटेरिया पे जाना है, डिजाइन ग्रिड में टाइप करना है क्राइटेरिया फॉर द क्वेरी, फॉर एग्जांपल 1 एंड आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद देन सॉर्ट प्रॉपर्टी इन द एम्प्लॉय आईडी फील्ड एंड सेलेक्ट करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर, वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। देन सेव करना है क्वेरी वन टैब को क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद क्वेरी वन टैब को सेव करना है। देन क्लिक करना है क्लोज बटन पे इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू चेंजेस बाय चेकिंग बाय क्लिकिंग ऑन यस बटन। यस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स में वो क्लोज हो जाएगा। नाउ डबल क्लिक करना है आपको क्वेरी नेम पे इन द नेविगेशन पे, ये क्या करेगा, शो करेगा रिजल्ट, आपकी क्वेरीज के रिजल्ट शो कर देगा लाइक दिस। क्वेरी वन पे क्लिक करने के बाद आपकी क्वेरी के रिजल्ट शो हो जाएगा। नाउ सेटिंग मल्टीपल क्राइटेरिया फॉर अ क्वेरी, जो मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करते हैं हम क्वेरी के लिए। सपोज यू वांट टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मोर देन वन क्राइटेरिया। सपोज आपको क्या करना है, डेटा क्या करना है, फिल्टर करना है जो बेस्ड आपके एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे। यू कैन डू दिस बाय एडिंग अनदर बेसिस ऑफ डेटा आउटपुट। आप क्या ऐसे कर सकते हो, ऐड करके अनदर बेसिस आपके डेटा आउटपुट में इन द और रो ऑफ द सेम कॉलम। सेव करना है आपको चेंजेस जो आपने क्वेरी में करना है एंड उसको क्लोज कर देना है। यू कैन सी द रिजल्ट्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन द क्वेरी नेम इन द नेविगेशन पेज। आप कैसे देख सकते हो रिजल्ट्स, अपने नेविगेशन पेज में डबल क्लिक करने के क्वेरी नेम पे डबल क्लिक करके आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। नाउ फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस, एज वी ऑलरेडी नो डेटा इन एमएस एक्सेस कैन बी मॉडिफाइड। जो डेटा होता है एमएस एक्सेस में वो मॉडिफाई हो सकता है यूज करके डेटा शीट व्यू को। हाउएवर व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटाबेस, मॉडिफिकेशन डन इन दिस व्यू आर नॉट सुटेबल। जब बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं इस डेटाबेस को तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती इस व्यू में। आर नॉट सुटेबल फॉर इस कॉम्प्रोमाइजिंग एज इट कॉम्प्रोमाइजेस विद द प्राइवेसी ऑफ द डेटाबेस। वो सुटेबल नहीं होती क्योंकि वो किससे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है, जो प्राइवेसी होती है डेटाबेस की। देयरफॉर फॉर्म्स आर यूज्ड इन एमएस एक्सेस टू कंट्रोल एक्सेस डेटा। जो क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज होता है एमएस एक्सेस में कंट्रोल करने के लिए डेटा को। अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एक फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो यूज होता है एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए डेटा को फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी। इट मैनिपुलेट्स द सेम डेटा। ये क्या होता है, मैनिपुलेट करता है सेम डेटा को एंड इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में। When we do any change in records in a form, अगर हम कोई चेंज करते हैं रिकॉर्ड्स में अपने फॉर्म में, the changes will appear in the table also। वो जो चेंजेस है आपके टेबल में भी होते हैं। एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है team used to work when forms are created। These are forms layout and design views। ये क्या होता है, फॉर्म्स लेआउट और डिजाइन व्यूज होते हैं। नाउ फॉर्म व्यू क्या होता है, ये क्या करता है, यूजली मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है आपके डेटा को। लेआउट व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस। ये जो आपका ये जो व्यू होता है ये आपकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए, फॉर्म की अपीयरेंस चेंज करने के लिए यूज होता है। साइज को एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म को चेंज करने के लिए यूज होता है। नाउ डिजाइन व्यू, दिस गिव्स अ डिटेल्ड व्यू ऑफ अ फॉर्म। ये डिटेल्ड व्यू देता है फॉर्म का बाय एडिंग हेडर ऐड करता है, फुटर ऐड करता है, कुछ डिटेल्स भी ऐड करता है। लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। सेलेक्ट करना होगा फॉर्म ऑप्शन प्रेजेंट होता है फॉर्म्स ग्रुप में क्रिएट टैब में। A new form created will open a layout view। जो न्यू फॉर्म क्रिएट होगा वो ओपन करेगा एक लेआउट व्यू। You can use form view in order to enter data in your form। आप फॉर्म व्यू को यूज कर सकते हो एंटर करने के लिए डेटा अपने डेटा फॉर्म अपने फॉर्म में। Once you have saved your work, जब आपने एक बार सेव कर लिया आपका अपना वर्क, वो फॉर्म अपीयर हो जाएगा आपका नेविगेशन पेन में। नाउ फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म को फॉर्मेट कैसे करते हैं। When we create a form, MS Access 3 tabs design, arrange and format appears in the ribbon। जो तीन स्टेप आपके 3 टैब्स होते हैं, डिजाइन, अरेंज और फॉर्मेट, वो आपके रिबन में अपीयर हो जाते हैं जब भी आप क्रिएट करते हो MS Access पे। सो अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्म कैन बी चेंज। जो अपीयरेंस होती है आपकी फॉर्म की वो चेंज कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस और टूल्स को यूज करके।
वी कैन ऐड लोगो एंड टाइटल, हम लोगो और टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड अलाइनमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं फॉर्म के. सो वी कैन डू मेनी थिंग्स. Here is the picture of how to format a form. Now what are reports? A report is used to display and print the data in a organized manner. एक report किस लिए यूज होती है? प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. A report organizes and summarizes data for online viewing. ये क्या करती है? समराइज करती है, ऑर्गेनाइज करती है आपकी डेटा को ऑनलाइन व्यूइंग के लिए फॉर प्रिंटिंग. रिपोर्ट्स एनेबल द यूजर टू एनालाइज द रिजल्ट. रिपोर्ट्स क्या करती है? एनेबल करती है यूजर को एनालाइज करने के लिए रिजल्ट एक प्रिंटेड फॉर्मेट में. रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड एट एनी टाइम. आप किसी भी टाइम रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो. दे आर प्रिपेयर्ड. ये प्रिपेयर होती है, यूज करते हैं करंट अपडेटेड डेटा को आपकी डेटाबेस में. नाउ क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट्स. सिंपल रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं? इन एमएस एक्सेस रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग रिपोर्ट ऑप्शन. रिपोर्ट ऑप्शन को यूज करके क्रिएट कर सकते हो. टू क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट फॉलो करने आपको कुछ स्टेप्स. क्लिक करना आपको टेबल या क्वेरी पे ऑन विच द रिपोर्ट्स नीड टू बी बेस्ड फ्रॉम द नेविगेशन पेन. देन क्लिक करना आपको क्रिएट टैब पे. देन क्लिक करना रिपोर्ट ऑप्शन पे जो प्रेजेंट है आपके कोच ग्रुप में. एमएस एक्सेस बिल्ड्स द रिपोर्ट. एमएस एक्सेस बिल्ड करता है रिपोर्ट एंड डिस्प्ले करता है उसको लेआउट व्यू में. Once you finish viewing the report, you can save it and then close both the reports. अब जब आप viewing finish हो जाए, आपको report save करनी है, then आप दोनों reports को close कर सकते हो. And the report, the underlying table or a query that you use are record source. Do you know a cross-tab query is a special kind of query that summarizes data. जो क्या करती है? summarize करती है data को कैसे? By plotting one field against one or move their fields. Move other things. So like this, you can create simple reports. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. See you in the next class.